to action as the puja started at the Gyanvapi basement following the Varanasi district court's orders. In protest against the puja resuming after 31 years, the Anjuman Intizamiya Mosque Committee has issued a Bandh call for today. It has appealed to Muslims in the city to keep their shops and businesses shut and to engage in duas from Friday afternoon prayers till evening prayers. Similar appeal has also been given to keep busy in duas. This appeal has been given to Muslims in other cities as well. However, it has been asserted that the Bandh should be observed peacefully, and in view of the call, tight security arrangements have also been made in Varanasi, especially in several areas. The Muslim bodies also held 2 rounds of meetings to discuss the legal strategy going forward. Times Now has learnt that during this meeting that was held at the office of the Jamiat Ulema-e-Hind in Delhi, discussions took place on what was the basis for the court to allow the puja in Gyanvapi basement. It also discussed that the Places of Worship Act has to be made the key point while raising the matter. The AIMIM chief Asaduddin Owaisi was also present in this meeting, and the Muslim bodies will be holding a media briefing at 11:30 a.m. in which Owaisi is also likely to be present. This comes after the puja, archana and aarti started inside the Vyasji Ka Tehkhana, a cellar in the southern side of Gyanvapi. A priest that has been appointed by Kashi Vishwanath Tirth Kshetra also read Vedic chants, rang temple bells and offered prayers for the Hindu deities. For devotees, it was a very momentous day, one that marked the end of 3-decade-long wait after a tiring legal battle. The basement was in fact cleaned and the first puja was conducted just 8 hours after the court's orders came. But the questions also being asked by the devotees: why did it take so long, and why was this right even denied to the devotees for so many years? At the receiving end of those questions was the Samajwadi Party. The BJP leaders gunned for the Mulayam government of 1993, saying that the decision to stop the puja was taken keeping in view the political gains for the party. The BJP also alleged that it was as part of the appeasement politics that Mulayam Singh Yadav first opened fire on Kar Sevaks in 1990 and then 3 years later blocked Shiv Bhakts from performing puja in Kashi. 31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू हुई तो मुस्लिम समाज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इस पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समाज की ओर से आज बनारस बंद का आह्वान किया गया है और उसका कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं चौक इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक जो दाहिने साइड में रास्ता जाता है वो काशी विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञानवापी परिसर की ओर जाता है, तो जो दूसरी तरफ ये बाईं तरफ जो रास्ता है वो जाता है पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी थोक मंडी है दाल मंडी की ओर जाता है। और यहाँ पर इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो पूरा मार्केट है ये मुस्लिम बहुल मार्केट है और यहाँ पर जो ज्यादातर जो कारोबारी हैं वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी के रूप में इसे जाना जाता है। प्रतिदिन लगभग करोड़ों रुपए का जो कारोबार होता है वो यहाँ पर होता है। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और यहाँ पर आम दिनों में हम देखते हैं कि जो लोगों की भीड़ होती है, जो ग्राहकों की भीड़ होती है, जो पूर्वांचल के अलग अलग कोने से यहाँ आते हैं, ये पूरी की पूरी जो मंडी है वो खचाखच भरी रहती है। लेकिन आज शुक्रवार के दिन पूरे तरीके से यहाँ पर सियापा पसरा है और सियापा ही नहीं बल्कि एक परिंदा तक यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं, इसके अलावा लोग अपने घरों में कैद है। तो निश्चित तौर पे जो गुस्सा है खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर, जो ज्ञानवापी के तहखाने में जिस तरीके से 31 साल बाद जो पूजा पाठ शुरू हुई है उसके विरोध में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं। और न सिर्फ दाल मंडी बल्कि दाल मंडी के अलावा जो बनारस के जो अन्य दूसरे मोहल्ले हैं, खासतौर से जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम बाजार है, वहां पर भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसके अलावा दाल मंडी के अलावा जो सोनारपुरा है या फिर बजरडीहा है या फिर जो दूसरे इलाके हैं बेनियाबाग है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये बंद का आह्वान किया गया है और लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। अगर पास की मस्जिद में जाते हैं तो बिल्कुल शांति व्यवस्था को कायम रखें। दरअसल अंजुमन Meanwhile, let's also talk about what's happening today. A lot of devotees have gathered outside the Vyasji Ka Tehkhana, and as the masjid side has called for a bandh, there are several devotees who are thronging Gyanvapi for the darshan. Devotees are making a beeline at Gyanvapi, singing bhajans right outside. Let's take you to the visuals of the devotees right outside the Gyanvapi cellar.
yesterday history was made as after 3 decades, finally puja was conducted at the Vyasji Ka Tehkhana. So let's tell you how it unfolded after the court gave its permission. First, the grill was removed using gas cutters. This was at 11:30 p.m., which means just hours after the orders came from the Varanasi court. So from 11:30 to 11:45 p.m., there was a makeshift iron door that had been made as well. And then at 12:30, that is after midnight, till about 1 a.m., the first puja, Vyas family member, the puja went on for about 15 to 20 minutes. The puja was conducted, after which Ganga Jal was also used to cleanse the area, after which in the morning there were aartis that were performed as well. Now, the Samajwadi Party, on the other hand, had questioned the hurry in the resumption of the puja. In fact, the SP chief, Akhilesh Yadav, said that the court had fixed 7-day period. Then why was there a hurry to make the devotees enter the area? Asking if it was done to prevent the mosque side from seeking any legal recourse. देखिए, इस सरकार ने ना तो महंगाई कंट्रोल करी, ना रोजगार दिया, ना किसानों को खुशहाल करा, ना ही इसने कोई ऐसा काम करा जिससे कि आम जनता खुश हो। आसान सा फार्मूला है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, वोट लेते रहो। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक? ये 3 मस्जिदों के बाद 3000 मस्जिदें और हैं टारगेट पे। 500 साल 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु जैन साहब, वकील हैं हिंदू पक्ष के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी पे। तो वारिस पठान जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, और मैं ये भी कहूंगी आपसे कि सत श्री अकाल। सवाल ये है, और पहला राउंड, फायर राउंड पहला जो हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, व्यास जी के तहखाने में पूजा से ज्ञानवापी केस पर क्या असर पड़ेगा? आपके मन में किस तरह की मंशा है और किस तरह के सवाल हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये, कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने भी कहा था और हमारा भी ये कहना है कि जो अदालत का फैसला आया वाराणसी कोर्ट का, वो गलत फैसला है। वो फैसला पर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन है। अब देखने वाली बात यह कि इसी कोर्ट ने 17 जनवरी के दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया था एज ए रिसीवर ऑफ वो जो तहखाना, जो सेलर था उसका। उस टाइम को इजाजत नहीं दी गई थी कि वहां पे आप प्रेयर कर सकते हैं। अब जिस दिन इनका जाने का दिन था, लास्ट दिन, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर ये सब हटा दिया जाए। मगर इतनी घाई थी, किस अपील करने का भी टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं, और रातों रात जाकर वहां पर पूजा शुरू कर दी। अब जो मुस्लिम पक्षकार है, जो इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां भी जाएंगे और हमको यकीन है कि जो फैसला है वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के फेवर में आएगा। क्योंकि पता है आपको नविका जी, ये जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, RSS वाले पूरे देश को वापस 1992 बाबरी एरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है इस बात का कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तक कायम है, अब तक इस वक्त तक यहां पर अप्लीकेबल है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये कब बना था? पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वहां क्या है, वहां क्या नहीं है, सब चीज पे चर्चा करने के बाद में एक पुख्ता कानून बना कि इस जो भी मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप या मस्जिद है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, 15 अगस्त 1947 के पहले का, उसका आप नेचर, उसका कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये साफ तौर से उस वक्त, क्योंकि पता था लोगों को कि इस तरह की बातें आएगी, तो इंटेंशन यही था कि इस तरह की चीजें न हो। मगर अब ये देखा जा रहा है कि इसका उल्लंघन हो, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि बीजेपी सरकार और मोदी जी आके देश के सामने, क्या उसको नहीं मानते हैं ये बात? उल्लंघन हुआ क्योंकि कोर्ट ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करवाइए। तो इसमें उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? वारिस पठान साहब के सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए नाविका जी, वारिस पठान साहब आज अपने ट्रैप में फंस गए। आज ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहे हो, मैं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहा हूं। अब चलिए आ जाते हैं केस के कुछ फैक्ट्स पे। सिर्फ ये कह देने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, ऐसे तो लीगल भाषा में बात होती नहीं है, क्योंकि ये भी वकील है, ये भी जानते हैं।
भाई एक्ट आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ, मैं कह रहा हूं एक्ट का उल्लंघन तो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने किया, और कैसे किया वो बता रहा हूं। जुलाई 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, लागू हुआ है, और हमारा केस है कि नवंबर 1993 तक वहां पूजा हो रही थी। मेरा ये स्पेसिफिक एवरमेंट है कि बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई और इस पूजा पाठ को रोका गया। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का उल्लंघन उस सरकार ने किया था जिसने पूजा पाठ रोकी, क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है नाविका जी कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है और एक्ट आने के बाद जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। तो एक्ट आने के बाद स्थिति क्या थी कि वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, तो उसका एक्ट का वायलेशन किसने किया? और आज आपका आज पूरी डिबेट का जो कोर इशू है नाविका जी वो है सवाल नंबर 2 कि इनके पास क्या प्रूफ है। और मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ये नहीं देखिए नाविका जी, ऐसा नहीं है कि व्यास परिवार आज उठा और सीधे उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और कोर्ट में आ गया और वारिस भाई ने अपनी बातों में एक बात कही, जरा उसको नोट करिएगा। ये साहब का जाने का आखिरी दिन था, उन्होंने आदेश पारित कर दिया। आई एम सॉरी सर, आप कोर्ट के इंटेंशंस पे एक मैलाफाइड इंटेंशन एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको इस केस के डेट ऑफ इवेंट्स नहीं पता है नाविका जी। 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट खुलने के लिए कोर्ट में मैटर लगा हुआ था। 24 जनवरी को कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि एएसआई रिपोर्ट खोली जाए और इसकी ऑफिशियल कॉपी पार्टीज को प्रोवाइड की जाए। 25 तारीख को, क्योंकि बहुत ही वो सेंसिटिव रिपोर्ट थी, जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने सामने जो सील कवर है वो सारी प्रक्रिया की गई, क्योंकि सील कवर में फाइलिंग हुई थी और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी की कार्रवाई हुई। 25 तारीख को रात में 9 बजे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली। 26, 27, 28 तारीख को कोर्ट बंद था। 29 तारीख को डेट लगाई गई। 29 तारीख को नाविका जी पता है किसने एडजमेंट लिया? अंजुमन इंतजामिया के वकील ने, और कहा कि साहब हमारी तबीयत खराब है, इसको किसी और दिन लगा दीजिए। कोर्ट ने इसको 30 तारीख को लगाया क्योंकि आउट स्टेशन लोग बाहर से आए हुए थे। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुना गया नाविका जी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया गया और 31 को जजमेंट आया। तो आपने बड़ी आसानी से एक ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर आपने एलिगेशन लगा दिए। वारिस पठान जी, जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला देते हैं उसी के तहत तो ये रिलीफ मिला है विष्णु जैन जी को। अब इसका क्या काउंटर है? विष्णु जैन जी ने कहा कि 1993 से प्रेयर वहां पर बंद कर दी गई थी, जिसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था। आज तक वहां पे प्रेयर बंद थी। 93 से अब तक विष्णु जैन जी 93 में क्या आपने चैलेंज किया था? पर रहते 150 से ज्यादा वहां पर मंदिरों को, जब काशी कॉरिडोर बन रहा था वहां पर सुनिए विष्णु भाई, मैंने सवाल किया, मैं तो आपको बोला ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर उल्लंघन किया था तो आपको 93 में आपने चैलेंज नहीं किया, 93 से अब तक। बात नंबर 2, काशी में जहां आप रहते हैं वहीं पर 150 से ज्यादा मंदिरों को बीजेपी की सरकार ने गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया जब काशी कॉरिडोर बन रहा था। तो उस पर आपने कभी आपत्ति ली कि क्यों तोड़ा, उसको वापिस से उसको बनाया जाए? आपने वो भी आपत्ति नहीं ली। इसलिए नाविका जी, जो मूल क्वेश्चन है ना इस बात का, जो मेन आज जो मुद्दा है वो ये है कि अभी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई सवालों के जवाब नहीं बचे लोगों के। देश की जनता को जो 10 साल से गारंटियां दी जा रही थी ना जुमलेबाजी की, 15 लाख जमा हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये इकोनॉमी बराबर हो जाएगी, सारी चीजों में मोदी जी हो गए फेल।